Hi, good morning. Good morning, everyone. Today we have the new lesson of your book Behave. The name of that lesson is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. She is from New Zealand basically, and she is a short story writer also. About the lesson, there are four basically characters are Kezia, Kezia's father, Kezia's grandmother, and McDonald's. Clear? Before starting the summary of this lesson, I hope you everyone just completed your reading task. It will very necessary to complete your reading task before starting the lesson. Then you will understand what lesson is going to teach you, what lesson is going to tell you. So about the Kezia, here is some short information about her. Kezia, the young female protagonist of the story, an emotional and sensitive girl. She is as much affected by her father's disciplinarian attitude as by his love. Clear? About the Kezia's father displays two divergent characteristics. Yes, in this very story, the role of Kezia's father is has two aspects. First, a very kind person. Second, a very disciplined person. Discipline is very necessary for everyone in everyone's human life. So in this story, first his negative attitude, as per Kezia's point of view, his negative attitude was he was appears as a dominatory head of the family. The positive aspect of his person is surface when he takes care of his little girl in absence of her mother. That is, and the next character is Kezia's grandmother. Of course, Kezia's grandmother was a very matured old woman. Kezia called her grandma, Gania, and the next character is MacDonald. MacDonald is a only neighbor, and as per Kezia's eye, he is a very kind person, and he love their kids very much, and she hope that everyone must have the same parent. So let us start the summary of this lesson. Starting the lesson, Kezia was a little girl. She feared her father. She thought that her father was like a giant. He had big hands and a big neck. केजिया एक छोटी सी लड़की है, वो अपने पिता से बहुत डरती है. वो सोचती है कि उसका जो फादर है, पिता है, वो एक जेंट की तरह है. उसके बड़े हाथ और बड़ी गर्दन थी. वो ऐसा एज्यूम करी हुई थी, है ना. His mouth was also very big. She always avoided him. She thought that he was very cruel. वो ये सोचती है, केजिया हमेशा सोचती है कि बहुत ही क्रूर हैं, और वो ये सब सोचती, डरती रहती है, उसे बचती रहती है उनके सामने आने से. ठीक है. केजिया's father worked in an office. केजिया के फादर जो होते हैं वो एक ऑफिस में काम करते हैं. He went to an office in the morning. वो सुबह सुबह ऑफिस में जाते हैं. He went, और जब वो ऑफिस चले जाते हैं, he went to the little girl's room. उनकी एक दिनचर्या होती है कि जब भी वो सुबह जाते हैं तो क्या करते हैं, वो उसके कमरे में जाते हैं. He gave her a casual kiss. वो उसको एक कैजुअल किस करते हैं. The father went to the office in a carriage. वो एक गाड़ी में जाते हैं. ठीक है. She felt very happy when her father had gone. और देखिए, जब उसके फादर ऑफिस चले जाते हैं तो वो बड़ी खुश होती है. In the evening the little girl's father came back. जब वो शाम को घर आते हैं, he spoke loudly in the house. वो घर में तेजी से बोलते हैं. Kezia feared her father's loud voice. और उसके फादर क्या होते हैं, बहुत ही तेज आवाज में बात करते हैं. इन द इवनिंग क्या होता है कि जब वो घर में आते हैं तो केजिया के फादर बहुत तेज बोलते हैं, तो केजिया उनसे बहुत डरती थी. ठीक है ना. और केजिया यूजुअल छोटी बच्ची है, तो कोई भी अगर तेज आवाज में बोलेगा तो वो डरेगी ही. ठीक है. हर मदर वुड आस्क हर टू गो एंड टेक ऑफ हिज शूज. उसकी माँ, मतलब उसकी केजिया की माँ बोलती है अपने केजिया के फादर से, बोलती है कि आप जाओ अपने जूतों को निकालो.
When she entered his room, he looked as her extremely. Kezia thought that her father was a hard-hearted person. उसको लगता है कि उसके पिताजी जो है ना वो एकदम कठोर हृदय वाले आदमी हैं। जब वो उसको एकदम क्रूरता से देखता है तो लगता है कि बहुत ही डेंजर आदमी है। One day Kezia made a pin cushion. वो एक दिन क्या होती है ना, एक दिन कुशन में जो होती है ना पिन लगाने बना रही थी। She wanted to present it to her father on his birthday. वो चाहती है कि वो इसको गिफ्ट करे अपने फादर को उनके बर्थडे पे। She needed paper to stuff the pin cushion. उसको जरूरत पड़ती कुछ पेपर्स की उसमें भरने के लिए। तो वो अब उसके कागज कहाँ से आएगी, तो उसने अपने क्या किया, वो सी found some sheets of paper in her father's room. She tore the sheets to stuff the pin cushion. वो क्या करती है कि उसके फादर के ऑफ कमरे में जाती है, वहाँ देखती है कुछ पेपर्स वगैरह पड़े होते हैं, उनको उठाती है, उनका वो यूज करती है, उसको फाड़ देती है और उसके पिता मतलब पूरा फाड़ के वो अपना काम कर लेती है। ये तो रहा काम केजिया का। अब उसके बाद क्या होता है, हर फादर हैड रिटन एन इम्पोर्टेंट स्पीच ऑन देम। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता क्या है कि यहाँ पे केजिया के फादर ने उसी कागज के बीच में अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच लिखा हुआ था, वो भी उसी में होता है। अब केजिया को पता होता नहीं है, वो क्या जानती है कि वो इसके अंदर क्या है, वो क्या करती है उसको तोड़ कर देती है, फाड़ देती है। अब क्या होता है, He was very angry with her. उन पे बहुत गुस्सा करते हैं। He took a stick and beat her severely. बहुत बुरी तरीके से उसको पीट देते हैं। He told her not to touch anything that did not belong to her. उसको एकदम सख्त हिदायत देते हैं कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, तुमसे जुड़ी हुई नहीं है, आप उसको एकदम टच नहीं करोगे, है ना। एकदम कुछ भी नहीं, anything that मतलब कुछ नहीं टच करना है। Kezia wept bitterly. She wondered why God had made fathers. तब वो कहती है, आश्चर्यचकित हो जाती है और बोलती है कि भगवान ने पिता क्यों बनाया। Now she trembled even at the sight of her father. अब तो वो उनको देख के भी कांपने लगती थी। One day Kezia saw her neighbor मिस्टर मैकडोनाल्ड। एक दिन वो देखती है मिस्टर मैकडोनाल्ड को, उनके जो एकदम जस्ट पड़ोसी होते हैं। He was playing with his children. वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। They all looked very happy, but Kezia's father never played with her. Now she thought that there were different kind of fathers in the world. Her own father was very cruel. देखिए बात क्या होती है, जब अभी तक उसने क्या स्टेट भगवान से प्रे किया कि भगवान कोई पिता मत बनाओ, किसी को पिता मत दो, ठीक। क्यों, उसको लगा कि सारे पिता ऐसे ही होते होंगे। लेकिन जब एक दिन उसने अपने पड़ोसी को देखा बच्चों के साथ खेलते हुए, बच्चों को खिलाते हुए देखा, तो उसको ये दिमाग में आया कि नहीं, सब सारे पिता जो होते हैं ना ऐसे नहीं होते हैं, कुछ पिता अच्छे भी होते हैं, खेलते भी हैं। अब उसने कहा कि उसके जो पिता थे वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल थे, ठीक है। अब कुछ दिन बाद आफ्टर ए फ्यू डेज केजियाज मदर बिकम इल। केजिया की माँ जो होती है वो बीमार पड़ती हैं। हर ग्रैंड मदर टुक हर टू द हॉस्पिटल। उसकी जो ग्रैंड मदर होती है, जिसको वो ग्रैनिया बोलती है, वो उनको हॉस्पिटल लेके जाती हैं। केजिया वॉज अलोन इन द हाउस विद द नर्स। तो अब केजिया तो घर में अकेली बच गई, क्योंकि ग्रैंड मदर जो थी वो उसकी माँ के साथ चली गई थी हॉस्पिटल में। अब केजिया घर में अलोन, ठीक है। She had to sleep alone in her bedroom. उसको अपने बेडरूम में अकेले ही सोना पड़ता था। At night, रात में she had a horrible dreams. वो रात में एकदम डर गई, बुरा स्वप्न देखी, डर गई। She saw that there was a butcher with a knife. उसने देखा कि एक जो कसाई है ना वो चाकू के साथ है। She was terrified. बहुत डर गई। She gave a loud cry. वो जोर से चीखी, चिल्लाई। Her father came into her room. उसके पिता जो है ना उसके कमरे में आए, है ना। अब उसके बाद he lifted her and took her to his own bed. और फिर उसको उठाए और उसको अपने कमरे में लेके गए। She lay beside her father. वो अपने पिता के बगल में सोई। She was tired and fell asleep before her. उसने कोशिश की उसके बगल में सोने की और वो सो गए। She was lost in thoughts. She thought that he had to work hard every day. He came in the evening. वो सोची उनके बारे में, क्योंकि दिन भर बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, दिन भर वो काम करते हैं, फिर शाम को आते हैं,
ठीक, वो उनके बारे में, अब उनके बारे में वो सोचने लगी वो क्या क्या करते हैं। उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, प्रतिदिन शाम को आते हैं, सुबह का गए शाम को आते हैं। देन ही वॉज टू टायर्ड टू प्ले विथ हर, इसलिए वो बहुत थक जाते हैं, तभी वो बच्चों के साथ खेल नहीं पाते हैं। शी थॉट, वो सोची दैट कि इफ इट वॉज हर फॉल्ट टू टीयर दोज इंपॉर्टेंट पेपर्स, अब उसको रियलाइज होता है कि ये उसकी गलती थी कि उसने बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर को फाड़ दिया था, इस वजह से सारा चीज हुआ। अब उसको एहसास हुआ, उसने रियलाइज किया कि हर फादर वॉज नॉट बैड, ही हैड अ बिग एंड लविंग हार्ट। तब उसको एहसास हुआ कि उसके फादर जो है ना बुरे नहीं है, उनका भी हृदय जो है ना बहुत बड़ा है, वो भी अच्छे इंसान है। क्लियर हुआ। तो हर बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन सभी के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को डांटता है तो वो सिर्फ उनकी भलाई के लिए ही, ताकि उनको कोई दूसरा कुछ ना कह पाए। टीचर और पेरेंट्स शायद इसीलिए दुनिया में सबसे आगे हैं। कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो पहले शिक्षक आपके पेरेंट्स होते हैं, बाद में जो द्वितीय शिक्षक होते हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आप लेसन को फिर से दोबारा पढ़िएगा, आप क्वेश्चन आंसर कर ले जाएंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे, और सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकॉन पे अगर टिक कर देंगे तो आपको नई वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको मिल जाएगा। तो फिर तब तक आगे वीडियो तक के लिए थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर।